Thank you. So we'll talk about vermicomposting, what basically vermicomposting is and how is it prepared, what are the requirements and what are the benefits and how is it used in the farm. When we talk of vermicomposting, it is basically a procedure of preparing a organic compost other than chemical fertilizers or chemical sources of fertilizers for crop production. Vermicomposting is a organic source of fertilizer to the crop. And when we talk of vermicompost, it is basically organic compost prepared with the use of earthworms. Earthworms are used for preparation of this compost, and also there is a specific breed, or we can say that earthworm which are used, that is Escherichia fetida. First of all, we'll talk of vermicomposting. It is the method of preparing enriched compost. Vermicompost is preparing enriched compost with the use of earthworms. So what we do here, we recycle the agricultural waste and produce a good quality compost. Earthworms, they consume the biomass which we are using in preparation of vermicompost. इसमें होता है क्या है कि vermicompost we take say paddy straw, cow dung, or also it is prepared from weeds like Parthenium. Also research is going on preparation of compost, vermicompost from Parthenium weeds or autumn season leaf falls, and also other things from which vermicompost is prepared. And these things are used in which earthworms are reared, and earthworms multiply at a very high rate, that is 3 times of their population. They multiply in this compost, and they produce a worm cast which is called a black gold. Vermicompost is also known as black gold. This cast which they produce is rich in nutrients, growth promoting substances, and many other soil microflora and fauna which produce the certain pathogens, or which are reduce the certain pathogens to affect the crop. Second is vermicompost is basically a stable fine, it's very granular. इसको जब हम तैयार करते हैं, प्रिपेयर होगा, आगे हम बात करेंगे, तो उसके बाद इसको सीव करके प्रिपेयर किया जाता है जिससे अर्थवर्म्स ऊपर रह जाते हैं, एंड vermicompost it goes down through the sieve. It is highly useful in raising seedlings. Most of you have seen that in organic compost it is commonly used in our nurseries to rear the seedlings or raise the crop production in poly houses or in nursery plants. It is used and it is highly beneficial over there. What are the materials required for preparation of vermicompost? As I told earlier, a paddy straw, I give the example. The materials include crop residues. Isme we can include paddy straw, wheat straw, like also Parthenium weed, also others like sugarcane trash is also used, and other also like autumn season leaf fall, which fall, they are also used for preparation of this compost. Second, wheat biomass, vegetable waste, kitchen waste is also highly used in preparation of vermicompost. Then leaf litter, as I told. Then hotel refuse, कोई भी kitchen का waste या कोई refuse है वो use होता है. Then waste from agro industries. Agro industries के जो bioproducts होते हैं, waste होते हैं, they are also used. Then biodegradable portion of urban and rural waste. Urban और rural का organic waste जो biodegradable है वो use किया जाता है. As I told earlier, a species of earthworms, basically a red earthworms, Escherichia fetida, it is most commonly used. There are other 2 species, that is Eudrilus eugene and Perinix excavatus. But most commonly used species is red earthworm, Escherichia fetida. They are preferred because they have high multiplication rate. As I told, they convert about 3 times, they multiply 3 times of their population. Like if we have inserted or we have given that 1 kg earthworms in a single bed, they become into a 3 kg. They multiply 3 times and transfer the organic matter into vermicompost. It takes about 45 to 50 days to convert into the vermicompost. Since this species is a surface feeder, it converts organic material into vermicompost from top. This point is very important because when we will be making vermicompost, where the bed which we are using, the height should be 1 to 2 feet, because this species is a surface feeder and they make healthy compost in 1 to 2 feet depth only. If the depth of vermicompost bed is more than 1 to 2 feet,
the earthworms go deeper and they do not make compost. These are certain important characteristics like how is the body weight, body length, maturity 50 to 55 days old, conversion rate, and also used in how much the day usage is there. Then why worms need, what worms need? इनको क्या चाहिए होता है कि अर्थवॉर्म्स को क्या क्या चाहिए? दे चाहिए, इनको चाहिए तो बेसिक थिंग्स जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अ हॉस्पिटेबल लिविंग एनवायरनमेंट यूजुअली कॉल्ड बेडिंग, एक प्रॉपर 6x3 का या 12x4 फीट का हम बेड तैयार करते हैं. उसमें क्या आता है, लेंथ बेड की हम 6 फीट से लेके 12 या जाने को 25 फीट तक भी ले जा सकते हैं. बट द ब्रेथ वी जस्ट प्रेफर 3 to 4 feet because while standing it is easy to mix the compost or do practice with the hands within the 3 feet breadth. Then they need a good food source. Then adequate moisture. Moisture is very important for earthworms. We need to sprinkle water at regular intervals on our vermicompost bed. Then it is adequate aeration. Aeration, when you are preparing vermicompost, it should be taken care that it should not be in open, it should be in a covered shed, and also it should be protected from sun as well as rain, because these earthworms respire through skin and they die under sun, or also the rain is harmful for them. Then protection from temperature extremes, as I told about you about sun. Then what are the types of vermicomposting? Types of vermicomposting are basically two types, small scale as well as large scale. That this depends on amount of production, आपकी vermicompost production कितनी है, या composting structure किस तरह का है आपके पास, जो आपकी infrastructure है वो कितना है आपके पास एरिया बनाने के लिए. For small scale vermicompost is done to meet the personal requirements, small nursery requirements or just kitchen garden requirements, and you can harvest 5 to 10 tons of vermicompost annually. Whereas large scale vermicompost is done on commercial scales. There are many people doing commercial scale vermicomposting, and it produces large quantity of organic waste, अपना compost with 50 to 100 tons production of annual. Then there are two basic methods of preparation of vermicompost. One is bed method and another one is pit method. As you can see in the picture below, the first method is a bed method. इसमें हम क्या करते हैं, we take 6 into 2 into 2, 6 feet length, 2 feet breadth. This can be increased into 2, 3 or 4 feet also, but not more than that, because it will be difficult for you to shuffle the layers of the of the compost bedding. And then 2 feet is height. As I said कि height इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वर्मी कंपोस्ट तैयार नहीं होती, क्योंकि ये सरफेस फीडर हमारी स्पीशीज जो यूज करते हैं ये नीचे चली जाएगी, फिर ये कंपोस्ट नहीं तैयार कर पाएगी. दिस मेथड इज वेरी इजी टू मेंटेन एंड प्रैक्टिस. ये सबसे कॉमन मेथड है बेड का, प्रैक्टिस करना और मेंटेन करना इजी है. दूसरा हमारा आता है पिट मेथड. यू कैन सी इन द पिक्चर बिलो. पिट्स तैयार कर लिए जाते हैं, एक खड्डे तरह बना लिए जाते हैं जिसमें हम इसको प्रिपेयर करते हैं. ओपन बेड नहीं है ये. इट इज डायमेंशन ऑफ 5 into 5 into 3. The unit is covered with thatch grass. Thatch grass के साथ कवर कर देते हैं इसको, या कोई अगर लोकल अवेलेबल मटेरियल हो तो इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर मेंटेन रखना होता है. दूसरा, इट इज नॉट प्रेफर्ड, दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड ड्यू टू पुअर एरेशन, वाटर लॉगिंग एट बॉटम एंड मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इन दोनों मेथड्स में यही फर्क है कि हमारा सबसे मोस्टली कॉमन प्रैक्टिस मेथड बेड मेथड है, क्योंकि वो खुले में आपने बेड तैयार किया हुआ है शीट, पॉलीथीन शीट या ग्रीन टेराकॉल शीट यूज करके. उसमें क्या है कि अगर कोई वाटर लॉगिंग या कोई चांसेस होते हैं तो वाटर निकल जाता है. इसमें क्या है, जबकि पिट में वो कवर्ड एरिया अपना चारों तरफ से वॉल्स हैं, तो वाटर लॉगिंग कंडीशंस आ जाती हैं बॉटम पे, जिससे वो उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं होती. एरिएशन में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि खुला नहीं है, एंड मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा आती है क्योंकि आपको बेडिंग बनानी पड़ेगी, वॉल्स बनानी पड़ेंगी. उसमें क्या है, ऑन पक्का फ्लोर यू जस्ट मेक अ बेड एंड ऑन अ पॉलीथीन शीट. देन दिस इज द प्रोसेस ऑफ वर्मिंगकम्पोस्ट. कितने दिनों में तैयार होता है? बेसिकली ये 40-45 दिनों में, 50 दिनों तक तैयार हो जाता है. इसको करते कैसे हैं? सबसे पहले वर्मिंगकम्पोस्ट यूनिट है जो हमारी, वो कूल, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस पे होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि वही अर्थवॉर्म्स को सन की रेज नहीं लगनी चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए प्लेस, मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शेडी प्लेस होनी चाहिए. दूसरा, काउ डंग एंड चॉप ड्राई
leaf vegetable materials are mixed in proportion of 3:1 and are kept for partial decomposition for 15 to 20 days. इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे काउ डंग ले लिया या लीफ लिटर ले लिया, कोई चीजें यूज करके 3:1 में लेके मिक्स प्रोपोर्शन में उसको 15 दिन के लिए छोड़ते हैं। और इसमें जो हम ध्यान रखना है कि जो इसमें हम काउडंग यूज करते हैं, दो दैट काउडंग शुड बी 7 to 8 days ओल्ड। फ्रेश काउडंग नहीं यूज करते इसमें, क्यों? क्योंकि फ्रेश काउडंग में इट हैज मेनी गैसेस एंड दिस कैन लीड टू द डेथ ऑफ अर्थवॉर्म्स। वो उसका पीएच का वेरिएशन होता है और बहुत हॉट होने की वजह से या गैसेस होने की वजह से अर्थवॉर्म्स किल हो जाते हैं। सो प्रेफर यूजिंग काउडंग of 7 to 8 days old, and then it is left for 15 to 20 days. Then after 15 to 20 days 1 kg earthworms are released into a 6 feet bed. अगर आपका 6 फीट लेंथ का बेड है 6 by 3 by 3 का, तो उसमें 1 kg earthworms, अगर इससे ज्यादा आप लेंथ बढ़ाते हो, सपोज 12 फीट का लेंथ का बेड है, तो यू यूज 2 kg earthworms, and 18 के फीट का है तो 3 kg earthworms, and so on. Then a layer of 15 to 20 centimeter of chopped dry leaves is used. Beds of partially decomposed materials 6 by 2 उसका फीट बना लिया जाता है। उसके बाद हर एक बेड में क्या है कि 1.5 से 2 क्विंटल का रॉ मटेरियल या नंबर ऑफ बेड्स कैन बी इंक्रीज्ड। अगर आपके पास रॉ मटेरियल ज्यादा है तो बेड्स आप ज्यादा बना सकते हो, अगर कम है तो आप कम बना सकते हो। 1.5 से 2 क्विंटल रॉ मटेरियल होना चाहिए एक बेड पे। उसके बाद रेड अर्थवॉर्म्स 1500 to 2000 दे शुड बी रिलीज्ड ऑन द अपर लेयर ऑफ बेड। वही आप अगर वेट में करोगे तो माना जाता है कि अगर 6 by फीट का आपका है बेड तो 1 kg अर्थवॉर्म्स शुड बी रिलीज्ड। वाटर स्प्रिंकलिंग होनी चाहिए, रेगुलर इंटरवल्स पे होनी चाहिए, एंड इमीडिएटली आफ्टर द रिलीज ऑफ अर्थवॉर्म्स आल्सो। यस বাইদেউ পাগলা হয়, দিব লাগিছিল তাই সিটোৰ ওপৰত চিঙাটো সেইটো ঠিকে থাকাটো দিলে ইয়েছিলে, এইটোতো ভালটো আহিলে। বাইদেউক ফোন কৰচোন যে আপুনি পাগল নেকি, মিষ্টাৰক ইখন তুমি ভালটো দিলা। ময়ো নাচালো। Water should be sprinkled at regular intervals after the release of earthworms also. The bed should be kept moist, whereas the bed should be turned once after 30 days for maintaining aeration. वैसे तो हफ्ते हफ्ते बाद उसको आप शुरू में भी करना है आपने 2 बार, जब पहले 15-20 दिन रखना है, और उसके बाद भी after 30 days the bed should be turned so that aeration can be maintained for proper decomposition of the organic waste. Compost gets ready in 45 to 50 days में रेडी हो जाता है, एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है वो जितना आप रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसका 3/4 होता है। ये देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट ऑफ पिक्चर इज बेड ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेकंड इज रेड अर्थवॉर्म्स यूज्ड फॉर द यूज। देन it is watering of beds, they should be watered regularly, and also beds covered with gunny bags. Jute bags are used to cover the beds, that is due to maintain the moisture of the bed. अगर आप कभी स्प्रिंकलर नहीं कर पा रहे या पानी रेगुलर नहीं दिया जा रहा तो जूट बैग्स के साथ कवर कर सकते हैं ताकि उसका मॉइस्चर बना रहे। उसके बाद हार्वेस्टिंग करनी होती है आपने। हार्वेस्टिंग वर्मी कंपोस्ट में 2-3 तरीके हैं। एक तो है कि आप उसको हीप बना के एक ढेर बना लीजिए। उसमें क्या है कि आप ये जैसे 7th फिगर में बनाया हुआ है, तो इसमें क्या है, द अर्थवॉर्म्स दे कम एट द कॉर्नर्स ऑफ द हीप and from upside you can collect the compost. Another method is also there, when your bed is there and you just take another FYM or cow dung of 7 to 8 days old and make balls of it. 4 से 5 balls बना लीजिए FYM की अलग से लेके, वो बेड के चारों कॉर्नर्स पे और सेंटर पे रख दीजिए। वो फ्रेश होगा तो वो क्या होगा, जो अर्थवॉर्म्स हैं वो उन बॉल्स को स्टिक हो जाते हैं, बाकी कंपोस्ट को छोड़ के वो उन बॉल्स को स्टिक हो जाते हैं, तो आप ऐसे भी कलेक्ट कर सकते हो। देन हार्वेस्टिंग, व्हेन रॉ मटेरियल इज कंप्लीटली डिकम्पोज्ड इट अपीयर्स ब्लैक। जैसे मैंने आपको बोला, इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। वाटरिंग शुड बी स्टॉप्ड, वाटरिंग स्टॉप होनी चाहिए जब कंपोस्ट रेडी हो जाए। इट शुड बी केप्ट ओवर अ हीप ऑफ पार्शियली डिकम्पोज्ड काउ डंग सो दैट अर्थ। ये भी एक तरीका है कि काउ डंग के ऊपर रख दो, काउ डंग में शिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर ऊपर से आप कलेक्ट कर लेते हो। दूसरा वो है कि 4 कॉर्नर्स पे और एक सेंटर में आप अलग से काउ डंग लेके बॉल्स रख दो,
अर्थवॉर्म्स वो बॉल्स को स्टिक हो जाते हैं एंड यू कैन यूज योर कंपोस्ट। आफ्टर 2 days कंपोस्ट कैन बी सेपरेटेड एंड सीव्ड फॉर यूज। फिर इसको बाद 4 mm सीव के थ्रू सीव किया जाता है। उसमें क्या है कि आपके जो अर्थवॉर्म्स हैं दे रिमेन ऑन द सीव व्हाइल द कंपोस्ट गोज डाउन फॉर यू टू यूज इन द फार्म। There are certain preventive measures which need to be taken care of. First is the floor of the unit should be compact to prevent earthworms migration into the soil. जो हमारा फ्लोर है वो कंपैक्ट होना चाहिए, पक्के फ्लोर पे ही करना है, क्योंकि नहीं तो आपका अगर सॉइल है तो अर्थवॉर्म्स वहां से आगे माइग्रेट कर जाती हैं। 15 to 20 days old cow dung should be used to avoid excess heat. जैसे मैंने आपको बोला 7 से 8 दिन का या 15-20 दिन का कंपोस्ट ही यूज कीजिए, अपना काउ डंग यूज कीजिए। अगर फ्रेश यूज करेंगे तो उसमें गैसेस हैं जो कि अर्थवॉर्म्स के लिए हार्मफुल है। इट शुड द ऑर्गेनिक वेस्ट जो आप यूज कर रहे हैं कोई भी, उसमें कोई सी तरह का कोई केमिकल, प्लास्टिक या पेस्टिसाइड या कोई हैवी मेटल नहीं होना चाहिए। अनदर इज एरिएशन मेंटेन करनी बहुत जरूरी है ताकि अर्थवॉर्म्स मल्टीप्लाई कर सके। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट दैट इज फॉर बाय द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, सो शुड बी मेंटेन so that 18 to 25 डिग्री सेल्सियस का हमने टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। टेम्परेचर चाहिए भी उसको, क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन चाहिए, पर उससे 18 से 25 डिग्री से एक्सेस नहीं चाहिए, नहीं तो वो अर्थवॉर्म्स के लिए डैमेजिंग हो जाएगा। उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ वर्मी कंपोस्ट। अगर हम लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें कितने परसेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं या एक कितने अवेलेबल होते हैं, दैट आई विल टेल यू। जैसे पीएच की बात करते हैं तो पीएच इसकी अराउंड 6.8 की होती है, ओसी 11% की होती है, ओएम होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें 20%, सीएन रेशियो होती है, टोटल नाइट्रोजन इसमें 1.02% होती है जिसमें से 0.50 अवेलेबल है। फास्फोरस की बात करें तो 0.30, पोटेशियम की करें 0.24, कैल्शियम की 0.17% एंड मैग्नीशियम की 0.06%। Then we'll talk of advantages of वर्मी कंपोस्ट। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले तो एफिशिएंट कन्वर्जन है, ये जो हमारा कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है हम उसको एफिशिएंटली यूज करके एक हेल्दी गुड क्वालिटी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। दूसरा, इट इज अ स्टेबल एंड एनरिच्ड सॉइल कंडीशनर। ये सॉइल कंडीशनर भी है, ये कंपोस्ट यूज करते हैं तो इट हेल्प्स इन गुड एरिएशन ऑफ द क्रॉप्स एंड रूट्स ऑफ द क्रॉप्स। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ऑफ पैथोजेंस एंड माइक्रोब्स। पैथोजेंस और माइक्रोब्स भी कम आते हैं इस कंपोस्ट से, क्योंकि हमारे जो फर्टिलाइजर वैसे होते हैं उसके कंपैरेटिवली जो हम कंपोस्ट तैयार करते हैं इसकी थोड़ी हम बोल सकते हैं कि फ्रेग्रेंस या जो इसकी हीटनेस, हॉटनेस या हीट है उससे क्या हो जाता है कि मैं पैथोजेंस या माइक्रोब्स नहीं आती। दूसरा है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स। ऑल्सो इट इज इकोनॉमिकली वाइबल। इकोनॉमिकली वाइबल है, कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है, कोई ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, एंड एनवायरमेंटली भी सेफ है, कोई एनवायरमेंट को डैमेज नहीं है। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन के लिए। ऑर्गेनिक के लिए तो ये बेस्ट सप्लीमेंट है कि आप इसको यूज कीजिए। इट इज इजीली अडॉप्टेबल, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी। व्हेन वी टॉक ऑफ डोज ऑफ दिस वर्मी कंपोस्ट, तो देयर आर डिफरेंट डोजेस वेरीड ऑन टू कि आपने सीरियल क्रॉप्स में यूज करनी है, फील्ड क्रॉप्स में या ऑर्चार्ड प्लांटेशंस में यूज करनी है आपने, या कोई पॉट में यूज करनी है। जैसे आप देख सकते हैं फील्ड क्रॉप्स में 5 to 6 टन आप यूज कर सकते हैं पर हेक्टेयर, दैट इज 2.5 एकड़ में आप 5 to 6 टन यूज कर सकते हैं। फ्रूट क्रॉप्स में 3 से 5 kg पर प्लांट यूज कर सकते हैं आप उसकी नर्सरी सीडलिंग्स रेज करने के लिए। दूसरा, उसके बाद पॉट्स अगर आप गमलों में यूज कर रहे हैं तो 100 से 200 ग्राम पर पॉट यूज करना है। यही इसी हिसाब से चलना है, ज्यादा एक्सेस में भी यूज करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है इसका, क्योंकि इसमें भी गैसेस होती हैं तो इट कैन हार्म आल्सो। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स? इट इज अ हाईली प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर फार्मर्स हैविंग डेयरी यूनिट्स। जिनके पास डेयरी यूनिट्स है उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उनके पास अवेलेबल काउ डंग है और इजीली एक अलग से एक अपना कंपोस्ट तैयार करके दे कैन जनरेट सोर्स ऑफ इनकम। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अलग अलग प्रोडक्शन के अंडर दी गई। जैसे अगर हम स्मॉल लेवल की बात करें तो उसमें क्या है, 52,000 अपना अगर खर्चा आता है तो 90,000 वी गेट आउट ऑफ इट। तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है जो हमारा 1 to 1.73 तक चला जाता है। उसी तरह मीडियम में 1 लाख से 1.85 लाख एंड इट रीचेस टू द 1.85 बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। एंड ऑन द लार्ज स्केल इफ वी यूज
2.25 लाख से लेके 4.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं एंड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज ऑलमोस्ट डबल बेनिफिट टू द कॉस्ट रेशियो दैट इज 2. Thank you.